Today we are here basically to thank the people of India on behalf of our Prime Minister Narendra Modi for extending such a massive support to contain COVID-19 fight. And today India is proud to announce that India has been able to vaccinate 100 crore people today under the dynamic leadership of our Narendra Modi, and we are celebrating this day as a festival today. Today at Red Fort, under the leadership of our Union Health Minister Mansukh Mandaviya, we are hoisting a Khadi flag weighing 1400 kg, and a national program is being celebrated over there at Red Fort, and a song is being released sang by Kailash Kher, and the audio visual film is also being released over there. So therefore today we are celebrating the 100 crore vaccination successful program launched by Government of India in the entire country. And how this has began, ये कैसा शुरू हुआ? सबसे पहले 19 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू ऐलान किया। उसके पश्चात 24 मार्च 2020 को जनरल कर्फ्यू ऑल इंडिया हमारा नरेंद्र मोदी की ओर से अनाउंस हुआ। उसके पश्चात there were many curfews, consecutively 4 curfews were announced, limiting 138 crores people in India. तो आज का दिन सबसे बड़ा दिन है हम लोग का। 100 करोड़ पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन देना ये बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। You know, the population of the whole of Europe is only 70 crores something, but we have vaccinated 100 crores people today. And you know, the population of Israel, it is around 85 lakhs. More than 100 times the population of Israel, more than 6 times the population of Pakistan, we have vaccinated our people in India, protecting against this COVID-19. So in the process, what we have done, Government of India ने क्या किया? Under the able and dynamic leadership of Narendra Modi, जैसे आपका फर्स्ट लॉकडाउन 1 अनाउंस हुआ, 1.70 crores were laid out for the poor people, जो लॉकडाउन में काम नहीं कर सकेंगे, इधर उधर नहीं जा सकेंगे, उन्हीं लोगों के लिए साथों साथ पैसा अनाउंस किया। और हर महीना एक व्यक्ति को 5 kg चावल, 5 kg गेहूँ और 1 kg चना फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया में हमारे प्रधानमंत्री के ओर से, केंद्र सरकार के ओर से मुहैया किया। एंड वी हैव बीन एबल टू प्रोवाइड 80 करोड़ पीपल फ्री फूड। एंड इन द प्रोसेस हम लोगों ने सर्टन मेजर अचीवमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। एक अचीवमेंट जो है 1 नेशन 1 रेशन कार्ड, दिस इज बेसिकली फॉर दी फ्लाइंग लेबरर्स। जो हमारा जो लेबरर्स है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट में काम करने को जाते हैं, ऐसे लॉकडाउन में समस्या को देख करके हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड ए न्यू पॉलिसी एंड इट इज़ ऑलरेडी एनफोर्स्ड इन द कंट्री कि देयर विल बी 1 ration card in 1 nation. That means a person issued 1 ration card, that ration card will be applicable in the whole of the country. कोई भी भारत के स्थान में अगर आपके पास रेशन कार्ड हो, आप हरियाणा का व्यक्ति होने से भी अरुणाचल प्रदेश में उसी रेशन कार्ड एप्लीकेबल हो सकते हैं। आउट ऑफ दैट रेशन कार्ड यू कैन हैव फूड। सो उसके पश्चात जो खास करके ये हमारे जो फ्रंट वर्कर्स, नर्सेस, डॉक्टर्स और जितने भी जो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कोविड-19 के तहत मैदान में जो मर गया, उनके लिए 50 लाख
life insurance coverage. These are certain very big contributions and very effective policies that the government of India has adopted to contain this COVID-19 cases in India. And अभी जो है हमारे नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के तहत इंडिया में एक बार ऐसे हुआ था कि पर डे within 24 hours there used to be 4 lakh new cases of COVID-19. And now, because of the effective administration, effective management by our central government, it has come down to 13,000 to 14,000 within 24 hours. And in fact, it is the lowest ever. So therefore, I would like to, on behalf of the state BJP unit, I would like to give special thanks to our Prime Minister, to our Health Minister, to our union ministers, MPs, and all persons, especially doctors, nurses, and the workers, frontline workers who has really cooperated with the government to contain COVID-19 in the country. Thank you. Good morning, friends. I, on behalf of the state BJP and also the state government, would like to extend warm welcome to all of you. May Laisam Simai, MLA and spokesperson. आज का जो प्रेस ब्रीफिंग बेसिकली हमारे बड़े भाई ने ऑलरेडी कहा है, तो इस सेलिब्रेशन हमारे एक उत्सव है. एंटायर कंट्री में 100 करोड़ वैक्सीनेशन जो अचीव किया है, उसके चलते हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सरकार को हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की ओर से बधाई देने का, और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का सरकार ने हमारे प्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या काम किया, क्या कदम उठाया. इन्होंने कोविड के दौरान बहुत जो काम किया, उसको हम लोग अपने पार्टी की ओर से और सरकार की ओर से उन लोगों को धन्यवाद देने के लिए आज का प्रोग्राम रखा गया. देखिए, हम सब जानते हैं कोविड-19 के चलते जो दुनिया में, देश में और हमारे प्रदेश में जो अवस्था हुआ है, जो सिचुएशन हुआ है, उसके दौरान इट वाज ऑलमोस्ट लाइक ए पैनिक लाइक सिचुएशन हो गई थी. मगर उसको कंट्रोल लाने में हमारे डायनेमिक चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब और उनके सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और सारे सरकार के अधिकारीगण, सारे जो फ्रंटलाइन कोविड वर्कर्स, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशंस और सारे जो NGO से, CBO से, रिलीजियस लीडर्स से, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, सभी ने दिल खोलकर कोविड-19 के कंटेनमेंट के लिए कम्बैट करने में वॉलंटरली सर्विस दिया है. उसके लिए भी हम सब उनको धन्यवाद देते हैं. हमारे सरकार जो कोविड से पहले जो हेल्थ सिनेरियो की स्थिति थे, वो काफ़ी इतने हेल्दी नहीं थे. मगर कोविड-19 ने हमारे सभी सरकार को और ख़ास करके अपने प्रदेश सरकार को भी एक ध्यान दिलाया कि चिकित्सा या हेल्थ सेक्टर को बहुत ज़ोर से ध्यान देना ज़रूरी है. जिसके चलते प्रदेश सरकार ने सारे जितने भी नेट्सिस के फंडिंग थे, सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को अपग्रेडेशन के लिए 350 करोड़ के रकम को सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके उसका हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए पूरा कोशिश किया है. अभी बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बन चुके हैं और अभी कोई बन रहे हैं, और सारा जो इक्विपमेंट से, मशीनरीज एंड इक्विपमेंट से बेसिक जो है उसको भी ऑलरेडी प्रोक्योर कर चुके हैं. तो हम देखते हैं जो हेल्थ सिनेरियो का जो स्थिति है, इससे बहुत क्वांटम जंप आज का दिन में कहीं में भी जाइए, एटलीस्ट हेल्थ सिनेरियो का आप लोग भी चर्चा करते हैं, सभी लोग चर्चा करते हैं, जो लाभ जो है हमारे लोगों के लिए मिला है. और कोविड के दौरान जो बहुत सारे टर्म्स जो है नहीं थे, जैसे कि जो ऑक्सीजन प्लान है, वेंटिलेटर्स है और उसका टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है, सारा चीज़ जो है फॉर द फर्स्ट टाइम ये
हमारे देश के लिए और प्रदेश के लिए भी ऐसा नई टर्म थे, और जिसके चलते सब कुछ हम लोग जीरो से शुरू करना पड़ा है। मगर अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी एंड अब ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर आलो लिबांग जी और उनके सारी टीम ने इतना अच्छा से कोविड-19 को संभाला है। आज हमारे प्रदेश में लगभग बहुत ही कम परसेंटेज में आज का जो स्थिति है बहुत सुधर चुका है। और मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को खास करके बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सिर्फ उन्होंने हेल्थ सेक्टर को ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि बहुत सारे जो हमारे प्रदेश की जो स्टूडेंट्स एंड जो वर्कर्स जो आउटसाइड द स्टेट रहते हैं, उन लोगों को भी अपना जो एक्सपेंडिचर 3,500 रुपीज़ पर हेड देकर उन लोगों को भी अपना प्रदेश में लाने के लिए जो व्यवस्था किया है, नोडल ऑफिसर्स नियुक्त करके सारा स्टेट्स को कोऑर्डिनेट करने दिया है, जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स है और अपने स्टेट्स के लोगों जहाँ काम करते उन लोगों को वापस लाने में जो मदद किया है, वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज का दिन में जो कोविड स्थिति का जो स्टेटस है, मैं आप लोगों को ज़रा बताना चाहूँगा। सिंस जो कोविड आउटब्रेक होने के बाद हमारे स्टेट में टोटल पर्सन्स टेस्टेड इज़ 11,63,650 persons were tested, out of which 11,06,664 are negative cases. We have a few thousands positive cases, that is 55,031 persons were tested positive. But by the grace of God, almost more than 99% people were discharged without any problem. It's around 54,606 people were discharged. वो अच्छे होने के बाद में उनको क्वारंटीन सेंटर्स से अलग अलग अपना आइसोलेशन, होम आइसोलेशन से और हॉस्पिटल से उन लोगों को रिलीज़ किया गया है। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ कि हमारे कोविड के दौरान अपने प्रदेश ने हम लोग अपने भाई बहनें और अपने जाने माने हस्तियों भी थे, तो अराउंड इट्स द फिगर एज ऑन डेट इज़ 280 persons लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग दिस कोविड कॉम्बैट। तो उनके लिए हम सब भी बहुत दुखित है और प्रदेश सरकार की तरफ से सभी जो प्रियजन जो अपना जान गंवाए उन लोगों को हम लोग श्रद्धांजलि भी देते हैं। और आज के दिन में वी हैव only 145 active cases in the state as on today. उसके चलते जो ICUs भी हमारे प्रदेश में शायद कोई भी हॉस्पिटल्स में शायद नहीं थे। अरुणाचल प्रदेश की पहला जो मेडिकल कॉलेज आप सब जानते हैं, ट्रिम्स जो नाहरलगुन में है, वो हमारे डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स के तौर पर नियुक्त किया गया था। और पासीघाट में नॉर्थ ईस्ट फॉक्स मेडिसिन जो हॉस्पिटल है, उनको भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स के तौर पर ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। और आज मैं खुशी के साथ आप लोगों को कहना चाहूँगा कि तवांग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, जीरो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आलो, तेजू एंड पासीघाट में ICUs ऑलरेडी सेटअप किया गया है। और अराउंड 47 हॉस्पिटल्स 47 आपका ऑक्सीजन प्लांट्स भी सेटअप करने का बाद है, आउट ऑफ विच 39 ऑक्सीजन प्लांट्स जो है ऑलरेडी सेटअप कर चुका है। वो 27 ऑक्सीजन प्लान जो है PM केयर्स फंड के तहत फंडिंग किया गया है, और स्टेट गवर्नमेंट की अपना जो PSU से अदर सोर्सेज से अरेंज किया गया है वो 17 ऑक्सीजन प्लांट्स है। और हमारे आर्मी की तरफ से भी 2 ऑक्सीजन प्लांट दिया है और RK मिशन की तरफ से 1 दिया है। टोटल 39 ऑक्सीजन प्लांट्स आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन द स्टेट आउट ऑफ 47। तो मैं अभी जो वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा, जिसके लिए हम सब आज इकट्ठे हुए हैं। ये बहुत ही खुशी के दिन है, खुशी का समय है, क्योंकि जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा है 100 करोड़ वैक्सीनेशन जो एंटायर देश में उसको अचीव करना ये मामूली बात नहीं है। इट्स
a Herculean task achieved by our honorable Prime Minister's constant endeavor और उनका एफर्ट के बदौलत ये अचीव किया गया है। साथ ही साथ हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी के सरकार दिन रात 24/7 उन्होंने जब से ये कोविड-19 के ये आउटब्रेक हुआ है तब से लेकर डे 1 से लेकर शायद हमारे देश में सबसे पहला चीफ मिनिस्टर होंगे कि हमारे प्रदेश में 1 वीक का लॉकडाउन जो बिफोर नेशनल लॉकडाउन भी स्टार्ट किया था। आई स्टिल रिमेंबर दैट वाज 21 मार्च 2020 और नेशनल लॉकडाउन जो है 23 मार्च से शुरू हुआ था। तो ऐसा एक होशियार और बहुत ही प्रिकॉशनरी मेजर्स हम अपने लोगों का ध्यान देने वाला दूरदृष्टि या डायनेमिक लीडरशिप हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर ने जो कदम उठाया, जिसके बदौलत आज हमारे प्रदेश सुरक्षित है, कोविड से हम लोग पूरा सुरक्षित है। इसमें आज का दिन तक जो वैक्सीनेशन ड्राइव जो आपने भी पूछा था उसको मैं अभी आपके सामने रखना चाहूँगा। जो फर्स्ट डोज 18 ईयर्स एंड अबव फर्स्ट डोज में 7,70,618 डोजेस या पर्सन्स को कवर किया गया है और सेकेंड डोज 4,96,760 यानी कि फर्स्ट डोज में 76% कवर किया गया है एंड सेकेंड डोज में अभी ऑनगोइंग ही चल रहा है तो 49% कवर किया गया है और टोटल 12,67,378 डोजेस या पर्सन्स को कवर किया गया है, जिसके चलते अप्रॉक्सीमेटली 80% टोटल स्टेट की कवरेज हो चुके हैं। तो अभी हमारे पास वैक्सीन अवेलेबिलिटी है 7,25,020 डोजेस अवेलेबल है और 7,80,820 डोजेस जो है ऑन ट्रांजिट में है। That will be reaching our state very soon. तो ऐसा स्थिति है और सबसे बड़ी बात ये है कि सारा जो कोविड वैक्सीनेशन के जो कॉस्ट है वो भारत सरकार ने बेयर किया है। सारे प्रदेश को और सारे प्रियजनों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन दिया गया, विच इज़ अ हिस्ट्री इन इटसेल्फ और बहुत बड़ा अभियान और आज हम उसको मना रहे हैं। और ये आज के दिन जो है हमारे सारे प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि आपने कहा आरके मिशन में फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट किया है, डॉक्टर्स एंड नर्सेस एंड मेडिकल फ्रेटर्निटी को हम लोग अप्रिशिएट किया है, धन्यवाद दिया है। ठीक उसी तरह हमारे सारे बीजेपी के कार्यकर्ता जहाँ भी हो अपने प्रदेश में आज के दिन अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स पर वो काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी को, माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी को धन्यवाद देते हुए होर्डिंग्स लगाकर हॉस्पिटल्स में जाकर और कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स में जाकर लोगों के सामने एक साथ में बैठकर ये प्रोग्राम को कर रहे हैं। तो ऐसा जो वैक्सीनेशन 100 करोड़ जो टारगेट अचीव किया है, हर लोगों के, हर एक व्यक्ति के जो कंट्रीब्यूशंस है, खास करके मैं हमारे जितने भी फ्रंटलाइन कोविड वर्कर्स है, हेल्थ वर्कर्स है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, पैरामेडिकल स्टाफ्स है, पुलिस फोर्स है, एडमिनिस्ट्रेशंस है और उनके साथ साथ जो हमारे जितने भी ऑनरेबल एमएलएस है जिन्होंने अपने अपने चुनाव क्षेत्र में दिन रात कोविड के दौरान वहाँ पर स्टेशन करके काम किया है, उसके लिए भी हम सभी लोगों का धन्यवाद देते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। और साथ में जितने भी CBOs है, NGOs है और अपना जो रिलीजियस लीडर्स है, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत लोग ने बढ़ चढ़ कर कोविड-19 के कम्बैट के लिए पार्ट लिया है। रिलीजियस लीडर्स लोग ने भी अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस में ये एनकरेज किया है कि कोविड-19 को हम सब मिलकर ही फाइट करना है, जिसके दौरान सभी ने अच्छा से काम किया है, उसके लिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं। आप सब ने सुना होगा अरुणाचल प्रदेश बहुत ही टफ टेरेन है, बहुत दूर दराज एरिया है जहाँ पहाड़ है, नदी है, नाला है, मगर हमारे फ्रंटलाइन कोविड वर्कर्स ने उसको भी मात देकर
पैदल में 2-3 दिन 4 दिन तक पैदल मारकर भी हमारे सिटीजन्स को सेफ्टी के लिए ये कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव को काम किया है, उसके लिए भी हमारे हेल्थ लाइन वर्कर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में जो नेशनल 30 लाख पर डे जो नेशनल लेवल में भी एवरेज जो कवरेज कर रहे हैं वैक्सीनेशन, जो कि दूसरा देश से बहुत ही अधिक फास्टर देन अदर कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इसके लिए आज मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और ख़ास करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री के जो एफर्ट है वो हम नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने अपना प्रदेश के जितने भी प्रियजन जो सिटीजन्स का सेफ्टी के लिए जो काम किया है वो हम सब उनके लिए आभारी है। मैं अपने प्रदेश सरकार की तरफ से और भाजपा की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ आवर स्टेट प्रेसिडेंट एंड ऑन बिहाफ ऑफ द बीजेपी पार्टी आई वुड लाइक टू थैंक आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश for spearheading this combat during the last COVID situation, and because of their effort today we are safe. Thank you very much. आज का प्रोग्राम इंडिया में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुका है। उसको सेलिब्रेट करने के लिए आज यहाँ में प्रोग्राम किया गया है आर के मिशन हॉस्पिटल में, जिसमें मुझे चीफ गेस्ट के लिए बुलाया है। मैं तुरंत खुशी होकर आया। ये मोदी जी का नेतृत्व में, हमारा पेमा जी का नेतृत्व में ये सक्सेस हुआ है, बहुत खुशी की बात है। ये 100 करोड़ वैक्सीन देने के बाद ये सपना जैसा है कहने चाहे तो, ना ऐसे वैक्सीन ना अमेरिका में दे सका है, न इटली में दे सका है, न जर्मनी में, फ्रांस में दे सका है, न चाइना में, जापान में दे सका है, न पाकिस्तान में दे सका है। ये तो इंडिया में दे सका है। मोदी जी है तो मुमकिन है, सही है। ये जब मोदी जी है तो हर कुछ मुमकिन, तो वैक्सीनेशन भी मुमकिन हो गया। 100 करोड़ 130-40 करोड़ है इंडिया जो है, लेकिन उसमें से 100 करोड़ लोगों को, इंडियंस को वैक्सीन दे चुका है। सर इससे फ़ायदा क्या है जो 100 करोड़? उससे फ़ायदा होगा जो वैक्सीन ले चुका है वो लोग बचेगा, बीमार नहीं पकड़ेगा, वो कोरोना भागेगा। यहाँ में क्या है, दूसरा जगह में भी पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट में भी करने का बात है। ये सेलिब्रेशन, ये थैंक्स गिविंग है, ये सेलिब्रेशन भी है और थैंक्स गिविंग भी है। ये डिस्ट्रिक्ट में भी बड़े पार्टी का कार्यकर्ता लोग ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन और ये मतलब सेलिब्रेशन और थैंक्स गिविंग प्रोग्राम मनाया गया है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट में तो ये हमारा पार्टी वर्कर्स लोग को पता है कि कहाँ में प्राइवेट में या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कहाँ क्या है, तो पार्टी लोग को पता चले। वो पेट्रोल का बात हमारा सेंट्रल यूनियन कैबिनेट मोदी जी का नेतृत्व में बात कर रहा होगा, उसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। वैक्सीनेशन इग्नोरेंस का वजह से नहीं ले रहा है कोई मतलब कुछ रूमर्स चलाता है इसलिए नहीं ले रहा है, लेकिन अभी सब लोग ले रहे हैं, इसलिए तो 100 करोड़ पहुँच गए। इट इज़ अ big achievement. We must be happy. We must celebrate it. Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.